So students, in this lecture we are going to see the increasing and decreasing function from applications of derivatives. What is increasing function and what is decreasing function? Okay. So the first is increasing function. The name itself says increasing. Increasing function मतलब क्या कि कर्व क्या आ जाएगा उसमें, ये देखो इंक्रीजिंग ऐसा कर्व है. ओके तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि व्हाट इज़ अ कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हेन यू से द गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हर टाइम पे तो आप ग्राफ नहीं निकाल सकते. तो देयर इज़ वन रूल, देयर इज़ जो हम एक मैथमेटिकल कंडीशन जैसे बोलते हैं वो वैसा दिया गया है. तो वो मैथमेटिकल कंडीशन मैं आपको ये लेक्चर में बताने वाली हूँ. और एक बात ये है कि वो मैथमेटिकल कंडीशन आया कहाँ से, कैसे वो प्रूव हुआ, तो वो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको. तो सपोज सी दिस इज योर कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y इज अ गिवन फंक्शन, y इज अ गिवन फंक्शन and it is a increasing function. Okay, so at point A, see this is point P whose x coordinate is a and y coordinate is y is equal to f of x. तो अगर यहाँ पे ये a है तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f of a. y एक्सिस क्या है, व्हाट इज y एक्सिस, इट इज f of x. तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ पे a हो गया, तो y कोऑर्डिनेट आ गया f of a. तो a f of a, the points for P are a and f of a. And a minus delta, if you are taking the neighborhood of a minus delta and a plus delta. अगर मैं यही सेम डायग्राम अगर एक पेज पे निकाल के आपको बताती हूँ, तो सपोज दिस इज योर y axis and this is your x axis. This is your function y is equal to f of x. y is equal to f of x is a increasing function. We are considering a point P whose x coordinate is a. तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया a, और इसका y कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया f of a. Okay, so if you are taking the delta neighborhood, delta is very small number. तो अगर डेल्टा नेबरहुड आप a का ले रहे हो, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, देन फॉर एनी पॉइंट बिटवीन दिस इंटरवल, सपोज अगर आप x1 और x2 यहाँ पे ले रहे हो, सो फॉर सच एनी टू पॉइंट्स, if see now you can see here x1 is less than x2, here x1 is less than x2, and if you see what is this length, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f of x1, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा f of x2. hence as it is increasing, here you can say that hence f of x1 is less than f of x2. So if x1 is less than x2, then f of x1 is always less than, नहीं always नहीं, अगर x1 is less than x2 है और f of x1 is less than f of x2 है, then your function is increasing. Okay, और अगर मैं यहाँ पे suppose this point P को, if I am drawing a tangent, अगर मैं यहाँ पे कोई tangent draw कर देती हूँ ऐसा, suppose T is a tangent and this angle is theta, so theta is a angle made with the positive direction of x-axis. Theta is angle made by the tangent with the positive direction of x-axis. So what you can say here, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, tan of theta, and theta is what, theta is a acute angle, so your tan theta is always positive, as theta is acute angle, what you can say, tan theta is greater than 0. बट व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, अर्लियर जो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व किया था वहाँ पे मैंने आपको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, एंड वी नो दैट व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx at point P. So here what is dy by dx at point P, so it is f dash of x. You can denote the slope of a tangent. See dy by dx, y का अगर डेरिवेटिव ले रहे हो मतलब आप f का भी डेरिवेटिव ले रहे हो, so it is nothing but f dash of x. या फिर आप इसको कह सकते हो कि dy by dx at point P, and what is the point P here, a comma f of a. Okay, so here what is the x coordinate, so f dash of a,
f dash of a as tan theta is an acute angle and both of these are formulas for a slope of a tangent. तो अगर आपको यहाँ पे tan theta greater than 0 मिल रहा है मतलब ये भी slope क्या होगा greater than 0. So if your f dash of a is greater than 0, if your f dash of a is greater than 0, then also your function is increasing, then also f is increasing function on which interval a minus delta to a plus delta, a minus delta to a plus delta, where delta is very small neighborhood of a. ओके डेल्टा क्या है स्मॉल इंक्रीमेंट है ए में, डेल्टा का वैल्यू बहुत स्मॉल छोटा है and delta is very small neighborhood of a. Okay, so for each point between this interval, if x1 is less than x2, it implies f of x1 is less than f of x2, then your function is increasing function, और इसी का और एक कंडीशन भी हम ले सकते हैं कि f डैश ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन 0. इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन का ये जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव आना चाहिए. देन यू कैन से f इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है. देखो कर्व दिया है, टैंजेंट दिया है, थीटा आई हैव रिटन, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, delta neighborhood of a. Okay, so the function y is equal to f of x, the function y is equal to f of x is said to be an increasing function of x in the interval a minus delta to a plus delta if f of x1 is less than f of x2, f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2, whenever x1 is less than x2. Okay, and if t is a tangent to the curve, then what is the slope of a tangent? Tan theta. Theta is an acute angle. Theta, what is this theta? Theta is an acute angle with the positive direction of x-axis. So slope of a tangent tan theta. As it is an acute angle, value of the tan theta is positive. Hence you can say what is the slope of a tangent, f dash of x. So f dash of x is greater than 0. यहाँ पे भी मैंने देखो फॉर्मूला लिख दिया है. Slope of a tangent is equal to f dash of x. It is equal to dy by dx at point P. Slope of a tangent is equal to f dash of x. It is equal to dy by dx at point P. So what is the value of x? X का value क्या हो गया यहाँ पे? X coordinate is a. So f dash of a is greater than 0 for all a belongs to the interval a minus delta to a plus delta. Then y is equal to f of x is a increasing function. Then y is equal to f of x is a increasing function. Okay, तो ये हो गया increasing function का criteria. नेक्स्ट है सेकंड है, तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि x1 इज लेस दैन x2, then f of x1 is less than f of x2, x1 is less than x2, then f of x1 should be less than f of x2. Then you can say the function is increasing function. और एक कंडीशन है उसका कि f dash of a should be greater than 0, f dash of a should be positive for all a belongs to this interval. Okay, नेक्स्ट है सेकेंड फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन. सेकेंड फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो जैसे हमने इंक्रीजिंग के लिए ये ग्राफ लिया था, डिक्रीजिंग के लिए आपका ग्राफ कैसे आ जाएगा? इट इज़ डिक्रीजिंग के लिए जो डिक्रीजिंग का ग्राफ है वो देखो ऐसे आ गया. तो सी आई विल शो यू. So suppose this is your curve, y is equal to f of x. Equation of the curve is y is equal to f of x and let this is your point P, a comma. तो अगर यहाँ पे a आ गया तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? f of a. y कोऑर्डिनेट आ जाएगा f of a. This is your a, y coordinate is f of a. Okay, now if you are considering the delta neighborhood of a, so it is a minus delta to a plus delta. Then for any x1 and x2, any x1 and x2 between this interval, अगर मैं यहाँ पे इसको x1 और इसको x2 ले रहे हो तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका f of x1 और ये लेंथ हो जाएगा आपका f of x2. So if you see here x1 is less than x2, x1 is less than x2, but f of x1 is greater than f of x2. So here f of
x1 is greater than f of x2. Okay, so this is a condition for decreasing function. ये आपका x axis है, ये आपका y axis है. Okay, so this is a condition for decreasing function. If x1 is less than x2, then f of x1 is greater than f of x2. Okay, अगर हम डेरिवेटिव के टर्म में अगर देखना चाहे तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल निकालती हूँ, सॉरी टेंजेंट निकालती हूँ at this point, at the point P, if I am drawing a tangent, okay, so what is the inclination of the tangent? Inclination मतलब क्या कि non-negative angle made with the positive direction of x-axis. So this is your angle theta. This is your angle theta. Okay. So if T is a tangent, if T is tangent, then what is slope of a tangent? Slope of tangent is equal to tan theta. Slope of a tangent is equal to tan theta. And what is theta? Theta is a obtuse angle. Theta is obtuse angle. And for obtuse angle, tan theta is less than 0. For obtuse angle, tan theta second quadrant में आपका एंगल चला जा रहा है, तो tan theta क्या हो जाएगा वहाँ पे? नेगेटिव हो जाएगा. सो यार व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का हमने फॉर्मूला देखा था. सो व्हाट इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx at point P. So here it is dy by dx at point P. What is your point P? A comma f of a. Okay, and it is given by dy by dx. डेरिवेटिव किससे डिनोट करते हैं हम? f डैश ऑफ x से. तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे? x का पॉइंट क्या हो गया? f डैश ऑफ a. f डैश ऑफ a is less than 0. f dash of a is less than 0. Then you can say that the given function is decreasing function. The given function is decreasing function. So this is also a condition for decreasing function, and this is also a condition of decreasing function. Okay, तो इसी को अगर हमें लिखना है तो ये देखो यहाँ पे कैसे लिखा है इसको. सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है. a का डेल्टा नेबरहुड यहाँ पे लिया है. x1 and x2 are any 2 points. So a function y is equal to f of x is said to be decreasing function of x in an interval a minus delta to a plus delta if f of x2 is less than f of x1. f of x2 is less than f of x1 whenever x1 is less than x2. So x1 is less than x2 है तो f of x1 क्या है? f of x2 से ग्रेटर है. f of x1 क्या है? f of x2 से ग्रेटर है. And if t is a tangent to the curve y is equal to f of x, if t is a tangent to the curve, then slope of a tangent is given by tan theta. Theta is obtuse angle, so tan theta is negative. So slope of a tangent is less than 0. So f dash of x is equal to tan theta is less than 0. Means f dash of x क्या आ गया? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया यहाँ पे. f dash of x it is equal to tan theta which is less than 0. So f dash of x is less than 0, hence f dash of a is less than 0 for all a belongs to the interval a minus delta to a plus delta. Then y is equal to f of x is a decreasing function. Okay, तो जो मैंने आपको वो डायग्राम निकाल के बताया बस वही यहाँ पे क्लियर कर दिया है. तो आपको बस इतना याद रखना है कि दो कंडीशन है यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि देखो जब आपका फंक्शन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन if x1 is less than x2 then f of x1 is less than f of x2. f of x1 is less than f of x2 and the first order derivative is greater than 0. The first order derivative is greater than 0. तो अगर हम मैथमेटिकल कंडीशन से देखें तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कंडीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. जब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश ऑफ x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका क्या आना चाहिए? ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए. फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन x1 is less than x2 then f of x1 is greater than f of x2 and the derivative f dash of x is less than 0. f dash of x is less than 0. So for increasing function it is positive, first order derivative should be positive. For decreasing function the first order derivative should be negative. Okay, तो ये concept है increasing function का और decreasing function का. So now we are going to start with the problems. Okay, now check, this is your question number 1. Test whether the following functions are increasing or decreasing. यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने सबसे पहले कि we have to check whether these functions are increasing or decreasing.
ओके। तो सबसे पहला कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. So f of x, what is f of x here? F of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16. Okay, now what is the first step? Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Hence f dash of x. F dash of x का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? 3x square n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन. 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 6 स्केलर टेकन आउटसाइड. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 12. डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस 16. सो इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x. सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 16 है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0. ओके, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x. 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0. सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12. ओके, सो हियर यू कैन टेक आउट 3 कॉमन. अगर यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू इट इज़ नथिंग बट, अगर हम यहाँ पे इसको देखा जाए कि ये देखो अभी अगर मैं कैसे लिखती हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. इट इज़ 2 स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 इंटू 2. तो ये जो स्क्वायर है, ये जो टर्म है, ये किसका स्क्वायर हो गया? 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अगर आप ये स्क्वायर करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. 2 इंटू 2 इज़ 4x प्लस 2 स्क्वायर. सो वो हो जाएगा 4. ओके, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, अगर आप यहाँ से भी ये लिखते हो तो भी चल जाएगा. सो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. So this is your value for f dash of x. This is your value for f dash of x. So as this term is a square, as it is a square and ये term है 3, तो एक तो ये square है इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा और 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टर्म हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा. तो हमें क्या चेक करना है कि वेदर दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. सो दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 except for x is equal to 2. except for x is equal to 2. तो जब यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, सो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0. हेंस व्हाट वी कैन राइट. अगर इसी को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इफ for all x belongs to R, for all x belongs to R minus x is equal to 2, minus x is equal to 2. तो जो पूरा रियल लाइन है उसमें से हमने क्या कर दिया है? सिर्फ 2 ये नंबर को माइनस कर दिया है. सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. x का वैल्यू कुछ भी होने दो, -1 होने दो, -3 होने दो, निगेटिव भी नंबर आए तो यहाँ पे स्क्वायर क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर दिया गया है. तो स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा इंटू 3. सो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट कौन से एक वैल्यू के लिए वो ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा? जब x का वैल्यू 2 रहेगा. सो वी विल remove this x is equal to 2 from the real number. So 3 into x minus 2 is greater than 0 for all x belongs to the R minus 2. Hence f of x is increasing function. Hence f of x is increasing function as it is greater than 0 is increasing function for all x belongs to r minus 2. For all x belongs to the interval r minus 2. पूरे के पूरे रियल लाइन के ऊपर except 2 the function is increasing function. Okay, what is given test whether the following functions are increasing or decreasing. तो हमें ये फंक्शन क्या मिल गया? increasing function मिल गया. Okay, now we will start with the next problem जो कि है थर्ड प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज का.
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/x माइनस 3. 7/x माइनस 3. x belongs to the set of all real number and x is not equal to 0. x belongs to the set of all real number and x is not equal to 0. Okay, so now I am starting with the solution. What I have said you कि सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, क्योंकि पूरा आपका जो इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट है. ओके, सो हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 7 स्केलर टेकन आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x minus derivative of a constant is 3. Okay, so it is 7 into derivative of 1/x. 1/x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया है डेरिवेटिव्स में तो आई हैव टोल्ड यू दिस फॉर्मूला. 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. ओके, minus derivative of a constant is 0. So it is equal to minus of 7 divided by x square. Minus of 7 divided by x square. This is your value for f dash of x. This is your value for f dash of x. Okay. Now what is given? X is not equal to 0. X is not equal to 0. X का value 0 तो है नहीं, तो ये टर्म क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है. ओके, या एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. तो एज इट इज़ अ स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा. ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा. लेकिन अगर आप न्यूमरेटर देख रहे हो तो वो क्या है? निगेटिव है. तो ये जो पूरा टर्म है ये हो जाता है निगेटिव. ये जो पूरा टर्म है ये हो जाता है निगेटिव. प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी उन्होंने कंडीशन दिया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0. x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो दिस वैल्यू माइनस 7/x स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस दैन 0 for all x belongs to the set of all real number except the x should not be equal to 0. Except the x should not be equal to 0. Okay, hence what we can write? So f is a decreasing function. F is a decreasing function for all x belongs to R. For all x belongs to R, where x should not be equal to 0. Where x should not be equal to 0. ओके, तो ये कंडीशन हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन का. ये कंडीशन हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन का. एफ डैश ऑफ एक्स हमारा आ गया लेस देन 0. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लिखते हैं अभी. Now here what is written? Question number 2. Find the values of x such that f of x is an increasing function. Find the values of x. We have to find the values of x for which the f of x is a increasing function. F of x should be a increasing function. Okay. So here आपका जो question number 1 दिया गया है, question number 2 का जो first question है वो दिया है f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Okay, so we will start with the solution. यहाँ पे क्या दिया है? ऑलरेडी दिया है कि f of x is a increasing function. f of x is a increasing function means what? f dash of x is greater than 0. f dash of x हमें क्या लेना है? जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लेना है वो हमें ग्रेटर देन 0 कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. यहाँ पे कुछ भी हमें चेक नहीं करना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. ओके, so here f of x is equal to what is given? 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Now differentiate with respect to x. So what is f dash of x? डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f dash of x. 2 into डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 36 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 1. ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. ओके, सो इट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. सो इफ़ यू टेक आउट हियर 6 कॉमन, देखो यहाँ से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं तीनों टर्म में से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
तो 6 कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब क्या, तीनों टर्म्स को हमें क्या करना पड़ता है, 6 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अंदर आ जाएगा x², इसको 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा -5x, यहाँ पे 6 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, तो ये हो गया आपका वैल्यू f'(x). Now what is given? f of x is a increasing function. So it is given that f of x is increasing function. f of x is increasing function. Hence what you can write? Hence f dash of x is greater than 0. As it is an increasing function, so f dash of x is greater than 0. But what is f dash of x? Let this be 1. But what is f dash of x? f dash of x का वैल्यू क्या आया है, 6 into x² minus 5x plus 6 is greater than 0. Right here from 1. यह वैल्यू हमने कहाँ से पुट किया, 1 से पुट किया कि ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तब फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which the function is increasing function. So we will solve this equation. Okay, now next अगर आप ये 6 यहाँ पे लेके आते हो, यहाँ as it is in multiplication here, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा RHS में, तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, x² minus 5x plus 6 is greater than 0. नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, फाइंड द फैक्टर्स फॉर दिस. तो 6 क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन शुड बी -5. तो 6 मल्टीप्लिकेशन है और -5 उसका एडिशन है, तो कौन से फैक्टर्स है, x - 3 x - 2, x - 3 x - 2. ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. देन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नाउ व्हेन ये दोनों टर्म, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव रहेगा, कब पॉजिटिव रहेगा. सो देयर आर 2 केसेस. सो इफ केस 1 इज इफ बोथ, दोनों टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं, x - 3 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड x - 2 इज़ ग्रेटर दैन 0. एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो ये ग्रेटर दैन 0 होगा, या फिर दोनों के दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए. तो निगेटिव इंटू निगेटिव, माइनस इंटू माइनस हो जाता है पॉजिटिव. वो केस में भी आपको क्या मिलेगा, ये ग्रेटर दैन 0. तो केस 1 हम ले रहे हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो x - 3 is greater than 0 and x - 2 is greater than 0. Means what? x is greater than, ये -3 अगर हम RHS में ले रहे हैं तो ये +3 हो जाएगा. x is greater than 3 and x is greater than 2. x is greater than 3 and x is greater than 2. ओके, तो अगर हम लाइन निकालते हैं, सपोज हम रियल लाइन निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाता है, ये तो आपका 0 1 2 3 है, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, x इज ग्रेटर दैन 2, x इज ग्रेटर दैन 2, एंड यहाँ पे दिया है x इज ग्रेटर दैन 3. तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन 3. ओके, दोनों का कंबाइन एक कंडीशन होता है कि x दोनों में से कौन सा अप्लाई होगा जो दोनों के लिए अप्लाई होना चाहिए. तो अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये इक्वेशन ले रहे हैं तो ये इक्वेशन में ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो वी विल टेक हियर हेंस x इज ग्रेटर दैन 3. x इज ग्रेटर दैन 3. ओके, नाउ वी विल टेक द सेकेंड कंडीशन. एक तो क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये मैंने पहले आपको कंडीशन बोला था, या फिर दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए. तो केस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, केस 2 x - 3 लेस दैन 0 एंड x - 2 इज़ ऑल्सो लेस दैन 0. दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे x इज लेस दैन 3, ये -3 अगर हम RHS में लेके जाते हैं तो ये हो जाता है +3, एंड x इज लेस दैन 2. x इज लेस दैन 3 एंड x इज लेस दैन 2. तो अगर सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे रियल लाइन देखेंगे तो ये हो गया 0 1 2 3. तो x का वैल्यू लेस दैन 3 है और x का वैल्यू लेस दैन 2 है, तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाता है कि x का वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस दैन 2. x का वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस दैन 2 आना चाहिए. ओके, हेंस योर फंक्शन इज, हेंस द फंक्शन इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये, हेंस f इज
increasing, a function is increasing if x is greater than 3 और x is less than 2. ओके, ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गए. सो व्हेन योर फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 और वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2 और वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2. ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन. चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मतलब x इज लेस देन 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी टू 2 और x इज़ ग्रेटर दैन 3, मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते थे कि 3 से लेके आगे तक अगर ये पॉजिटिव है तो 3 टू इन्फिनिटी, ये भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है. ओके, तो अगर आपको चाहिए तो ये भी आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो, या फिर आपने ऐसे भी लिखा है f इज़ इंक्रीजिंग इफ x इज़ ग्रेटर दैन 3 और x इज़ लेस दैन 2. दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट आंसर. ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 2 से, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूँगी. तो ये वीडियो में इतना ही. ओके, तो एक बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या लेना था, ग्रेटर देन 0, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f डैश ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, थैंक यू.